हेलो स्टूडेंट्स, थोड़े बहुत आगे के क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि प्लीज़ मैडम इतने क्वेश्चन जो है वापस से करवा देना, तो हम वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। What is the vapor pressure of the solution prepared by dissolving 0.5 gram of a substance? So this substance is your solute. In a 100 ml carbon tetrachloride is your solvent. Solvent is volatile, that's why for a solvent vapor pressure is given. Okay, and yes, your solute is not volatile and density of solvent is also given. Fine. So you have the formula Raoult's law for non-volatile solute. So we have already enlisted the term which is given in the question. First of all, WB is given, that is the weight of solute, 0.5. Weight of solvent is not given, but the volume is 100 and the density is given, that is 1.58. So 158 gram is the weight of solvent. Now molar mass of solute is given, even a molar mass of solvent is given. Fine. So we will apply the formula of what? Raoult's law for non-volatile solute. This is your XB. Okay. So instead of XB we have derived NB upon NA. So instead of NB we can say mass upon molar mass. नीचे क्या करेंगे हम? Na का मास अपॉन मोलर मास, तो Ma ऊपर चला जाएगा. ठीक है. P naught value is given in the question, that is 143. So 143 minus P upon 143. WB is 0.5. WA is 158. MA is 154 and MB is 65. ओके. सो पहले तो आप इतना सॉल्व कर लो और 143 को भी आप यहाँ पे लेके आओ. सॉरी, तो पहले तो आप इतना सॉल्व कर लो और 143 को भी यहाँ पे लेके आओ. सो 143 माइनस पी इज इक्वल टू आपका जो भी आंसर आ जाएगा. तो P को आपको बाद में इस तरफ से शिफ्ट कर देना है. P को आपको इस तरफ शिफ्ट कर देना है, तो P प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो भी टर्म है वो 143 के बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देनी है. ठीक है. तो आपको आंसर जो है वो 141.97 मिल जाएगा. ठीक है. तो इतना कैलकुलेशन आपको कर लेना है. नेक्स्ट इज अवर question number 27. How much water should be added to 2% weight by volume of a 5 liter NaOH solution so as to make its concentration 0.5 normal? Okay, first of all, in the question they have given 2% weight by volume. So for a 2% weight by volume, what we can say, 100 ml contains 2 gram. What 2 gram? 2 gram of NaOH. 100 ml contains 2 gram of NaOH. So for a 1000 ml, because we molarity should be mole per liter, so for a 1000 ml we will calculate it. So it will be nothing but 20 gram. अभी हमें नॉर्मालिटी की बात की गई है, तो नॉर्मालिटी की फॉर्मूला ले लेता है. नॉर्मालिटी इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट अगर आपको स्टिल नहीं आ रहा है तो आपके पास सल्यूशन है. आप एक काम करो, मेरे चैनल पे जाके इक्विवेलेंट वेट के तीन पार्ट जो गिवन है वो देख लीजिए प्लीज़. ठीक है. अभी वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है. लीटर में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है. नॉर्मालिटी जो है वो गिवन है यहाँ पे 0.5, क्योंकि आपको 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है. वो प्रिपेयर करने के लिए आपको W जो है वो कितना लेना है वो हमारी बात हुई है. ठीक है. सो मल्टीप्लाई बाई 1000. ओके. अपॉन equivalent weight of NaOH. So equivalent weight is equal to molar mass upon N factor. Here you have 1 OH minus ion, so your N factor is 1, so equivalent weight is same as molecular weight. Now volume is now 1 liter. ठीक है.
तो 1 लीटर है तो ये 1000 नहीं लेंगे तो चलेगा। तो हमें क्या करना होगा अभी 0.5 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू W। 5/10 कर लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 4 ज़ा आपका 20 ग्राम आ जाएगा। तो ऑलरेडी 1 लीटर के अंदर हमने 20 ग्राम ही डिज़ोल्व कर रखा है। तो नाउ you no need to add water, the solution is already 0.5 normal. Okay, now we will discuss the question number 49. What will be the vapor pressure of solution prepared by dissolving 18 gram of glucose to 178.2 gram of water? Here water is what? Glucose is what? Glucose is a solute and water is a solvent. Weight of both is given. For a glucose you can take molar mass 180 and for water you can take 18. Okay, what will be the vapor pressure of solution? पहली बात तो ये है कि ग्लूकोज आपको पता ही है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो आपको राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट वाली फार्मूला जो है वो अप्लाई करनी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो गिवन वैल्यू जो है वो हम लिखते जाएंगे यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे हम लिख देंगे NB अपॉन NA। इंस्टेड ऑफ NB व्हाट यू विल राइट WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई WA। MA ऊपर चला जाएगा। WB इज योर सल्यूट इज गिवन 18 एंड दिस इज 180 फॉर ग्लूकोज। ओके, वाटर का मास दिया गया है 178.2 एंड डेफिनेटली वाटर के लिए आपको MA भी पता है, तो MA वाटर के लिए क्या होता है 18 होता है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको इजीली आंसर जो है इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सल्यूट एंड नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के ऊपर से आएंगे या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलर एलिवेशन एंड डिप्रेशन और ऑस्मोटिक के बेसिस पे आएंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेंगे। तो 54 क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ मच H2SO4 is required to prepare 0.1 molar 1 liter H2SO4 solution and the density is given. Listen, we have studied in a concentration term के बाद स्पेशल फार्मूला, 5 स्पेशल फार्मूला मैंने आपको दी थी, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको। प्लीज़ भूल मत जाना। गो थ्रू द आई गेस टॉपिक 2 या फिर 3 के आसपास होगा वो टॉपिक। स्पेशल फार्मूला करके मैंने हेडिंग दिया होगा, वो आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो वो फार्मूला जो है वो हमारी थी कि परसेंटेज W/V इंटू 10 अपॉन मोलारिटी। अभी वॉल्यूम डेंसिटी पता हो तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। सो इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम यू कैन राइट व्हाट वेट अपॉन डेंसिटी। सो यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह पे वेट अपॉन डेंसिटी लिखूंगी तो डेंसिटी न्यूमरेटर में चली जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी फाइंड करनी है। परसेंटेज W/W इज गिवन दैट इज 98 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड द डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन दैट इज 1.80 ओके डिवाइडेड बाई मोलर मास। सो मोलर मास फॉर H2SO4 इज 98, सो यू जस्ट कैंसल दिस, सो इट विल बी नथिंग बट 18 मोलर। ठीक है, तो आपका ये आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है डाइल्यूशन फार्मूला दैट इज नथिंग बट M1V1 इज इक्वल टू M2V2। योर M1 इज 18, V1 इज अननोन, 0.1 इज द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और V2 जो है वो है 1000। ठीक है, तो आपको V1 मिल जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 18, सो इट विल बी नथिंग बट 5.55 ml इज योर V1। ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 55 क्वेश्चन देखिए आप। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड A and B आर 520 mm and 1000 mm respectively at 80 degrees Celsius temperature. If the solution of B is boiled at 80 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure,
what will be the percentage age of A in the mixture? First of all, I can say A and B both are volatile because for both vapor pressure is given. So apply the formula of Raoult's law for volatile solute, that is P total is equal to P naught XA plus P naught XB. Okay, here XA and XB is unknown, but you know that XA plus XB is equal to 1. So instead of XB we can write 1 minus XA. ठीक है, तो हमारी फार्मूला जो है वो किसके XA हमें मिल जाएगा, क्योंकि P टोटल तो गिवन है, दैट इज 760. ओके, गिवन नहीं हो तो भी आपको यहाँ से एज्यूम करना है कि 80 डिग्री सेल्सियस बॉईल करते हैं, तो वो टाइम पे प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जा रहा है. तो 1 एटमॉस्फेयर को हम mm में कन्वर्ट करते हैं तो 760 होता है. ठीक है, तो ये हिंट आपको ध्यान में रखनी है. उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है, मीन्स जो भी सब्सटेंस है, बीस इज अ सब्सटेंस, उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर, ठीक है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं. अभी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, उसको हम ये दोनों mm में गिवन है तो mm के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और आप जो है वो एक्से इसके अंदर फाइंड कर सकते हो. और एक 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है क्वेरी के अंदर, विच फार्मूला इज करेक्ट टू गेट मोलिकुलर वेट of the substance with reference to osmotic pressure. So I can say you can apply the formula definitely pi v is equal to nRT. Okay, pi v is equal to nRT. Fine, but what to do अगर फाइंड करना हो मोलर मास, तो यहाँ पे वेट अपॉन मोलर मास लिख लेते हैं. ओके, तो आपको यस मोलर मास को सब्जेक्ट बनाना है, तो WRT अपॉन पाई इंटू वी आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, क्या है कि वेट के लिए मास भी बोल सकते हैं, तो स्मॉल m लिया है. ठीक है, स्मॉल m के बाद m2 लिखा है. आपको पता ही है कि हम सल्यूट के लिए 2 या फिर b सिंबल यूज़ कर रहे हैं और सॉल्वेंट के लिए हम 1 या फिर a सिंबल यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे w की जगह पे m2 लिखा है, मगर दिस इज़ द सेम थिंग, दिस इज़ नथिंग बट वेट ऑफ सल्यूट ओनली. ओके.